Hello everyone, Sat Shri Akal सारे नु. I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash. So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for our upcoming exam of Punjab PCS Mains, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ according to official notification of Punjab PCS, right? I hope you have already prepared very well for that particular exam and you are still preparing for that particular exam, right? So we have already covered a lot of lectures in this particular lecture series, right? We have reached to the end of this lecture series now. Only 1 or 2 lectures are remaining, right? If you haven't watched those previous lectures, so you can watch them according to your need, right? All right. So the topic of today's lecture will be corporate governance, and without wasting any further more time, let's straight away start our lecture. Okay. See, we have this initiative, as you know. We have mains test series plus booklets which goes by the name of mains brain box, right? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੋਟਸ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਚ ਕੁਆਇਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 5000 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਵਲਸ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲਸ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼, ਠੀਕ। ਸਟਿਲ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ ਟੂ ਦ ਆਵਰ ਨੰਬਰ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਸੋ we are dealing with administrative ethics, right? Public civil services values and ethics in public administration अपना यूनिट चल रही हैगी है, ठीक है। We have covered status and problems, right? We have covered laws, rules, regulation and conscious source of ethical guidance, ठीक है। Ethical concerns and dilemmas we have already covered in previous lectures, right? So today's topic will be corporate governance, right? And tomorrow we will be covering all these three, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, सारा कुछ कवर हो चुका, right? Okay, so before starting the topic, answer writing practice, previous year question of UPSC by the way, ठीक है। But although we have covered this in class as well, what are the major teachings of Mahavir? Explain their relevance in contemporary world, ठीक है। 10 marker सीखा, ठीक है। तुसी attempt करो and you can send it to me on my Telegram channel. This is my Telegram channel. You can send the question to me. I will review it for you, ठीक है। कोई पैसा नहीं लिता जा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, फ्री ऑफ कॉस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रिव्यू करके ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, so now let's start the topic which is corporate governance. all right, see corporate governance ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਲਾਈਕ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਥਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ that ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है, the keywords should be based on ethics. like keywords में तो आपके ethics दिखना चाहिए, ठीक है। keywords में आपके ethics दिखना चाहिए, तभी आप marks fetch कर पाएंगे, right? first thing is that is clear, let's keep that in mind. all right, now so as the word governance, see governance का क्या मीनिंग होता है? governance का मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल मीनिंग बताओ बिल्कुल अगर आपको, तो गवर्नेंस का सिंपल मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और कॉर्पोरेट का सिंपल मीनिंग होता है कंपनी। so the literal meaning of corporate governance comes out to be the administration of the company. The literal meaning comes out to be the administration of the company, yes or no, right? when it comes to corporate governance, but the real, let's write down the actual definition as well. so what does this mean? so the definition says corporate governance is a set of system, ठीक है, system, process
process and and principles which ensures that a company is governed according to that a company is governed according to right that which ensure that a company is governed according to certain rules regulations, right, values which are in the best interest of values in the best interest of all the stakeholders. ओके, सी अब डेफिनेशन से आपको एक चीज समझ आएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें एथिक्स की टर्म्स में देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एथिक्स की फॉर्म में देखना है। तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी की उसके अंदर कुछ सर्टेन वैल्यूज का इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि लाइक जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एथिकल वैल्यूज फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, यस और नो, तो दैट विल लीड टू व्हाट एथिकल आंसर। सी यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स विच एंश्योर, ये एक ऐसा सिस्टम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसा प्रोसेस सिस्टम जो एंश्योर करता है कि देर आर सर्टेन द कंपनी की जो गवर्नेंस है उसके अंदर देर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस, कि कंपनी की गवर्नेंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस और वैल्यूज, राइट, which are in the best interest of all the stakeholders. Now this is the keyword कि ये वाले कुछ certain rules regulation और values follow हो रही हैं which are in the best interest of all the stakeholders of the company. Now the next question that should come into your mind is what are the stakeholders here? ठीक है, what stakeholders are we talking about? So the stakeholders that we are talking about are board of directors, right, board of directors, आपके managers, ठीक है, शेयर होल्डर्स, देन ऑडिटर्स, कस्टमर्स, राइट, ऑडिटर्स, देन योर कस्टमर्स एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आ जाते हैं लाइक कंपेटिटर को भी कई जगह पे स्टेक होल्डर बोल दिया जाता है, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन एटसेट्रा। ठीक है, बट मोर और लेस दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिनका ध्यान रखना होता है, राइट, जिनके बेस्ट इंटरेस्ट में हमेशा काम करना होता है। ठीक है, यस और नो, ऑल राइट। नाउ the next dimension is good corporate governance. What is required for a good corporate governance? So when we talk about a good corporate governance, see कंपनी का क्या होता है, कोई भी कंपनी हमेशा अपने generally any company, each and every company works only for their economic interest. ठीक है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचती हैं, तो बेसिकली सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोच रही होती है जनरली, बट दैट इज द थिंग हियर, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होता। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली a balance between, right, it should be a balance between economic interest, social interest, and an individual or a community interest, right. It should be a there should be a balance between economic interest, social interest, and individual or community interest. मतलब if I write down here
there should be a balance between economic and social goals of the company. Yes, and there should also be a balance between individual and community, right? There should be a balance between individual and कम्युनिटी. ठीक है, सो इसको एक एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, वी लेट्स अंडरस्टैंड दिस विजन विद एन एग्जांपल. तो जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आए तो हमेशा टीसीएस विच इज नोन फॉर देयर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, टीसीएस का एग्जांपल ले लेते हैं. सी कोविड के एरा के टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 टीसीएस ने क्या अनाउंस किया था कि all those employees of TCS, all the employees of TCS who deceased or you can say died due to COVID, ठीक है, due to COVID will get, मतलब उनकी फैमिलीज को, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी फैमिलीज को उस पर्सन की जो 60 इयर्स तक वो जो सैलरी ड्रॉ करते, ठीक है, 60 इयर्स तक की जो वो सैलरी ड्रॉ करते, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस पर्सन की अनफॉर्चुनेटली जब डेथ हुई तो 40 इयर्स के थे वो, तो लेट्स से कि जब नेक्स्ट 20 इयर्स में जो कंपनी से वो सैलरी ड्रॉ करते, तो जो रिमेनिंग 20 इयर्स की जो पेंडिंग सैलरी है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली. ठीक है, वो फैमिली को प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ के साथ उनके चिल्ड्रंस की चिल्ड्रन एजुकेशन विल आल्सो बी सपोर्टेड बाय द कंपनी, राइट. तो ये इनिशिएटिव लिया था टीसीएस ने. सो दिस शोज, राइट, दिस शोज व्हाट दैट कि वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोच रहे थे. तो यहाँ पर कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचा जा रहा है, सोशल इंटरेस्ट के बारे में भी सोचा जा रहा है. तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, विच कैन डेफिनेटली कोड. तो कम इसी को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कि बोला जाता है कि दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा. यस, नाउ let's move on to the next aspect, which is the constituents of corporate governance. The constituents of corporate governance. What are the constituents of corporate governance? Like board of directors. First one is the board of directors. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे बैठे थे, पिवटल रोल प्ले करते हैं. दे प्ले व्हाट, दे प्ले द पिवटल रोल, पिवटल रोल, राइट. कौन सा, लाइक दे आर पिवटल रोल जिसकी बात कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी, दे हैव टू मेंटेन क्या, अकाउंटेबिलिटी टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, टू ऑल स्टेक होल्डर्स. पॉलिसी फॉर्मेशन यही कर रहे होते हैं, यस और नो, दे आर, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये पॉलिसी फॉर्मेशन में, डिसीजन मेकिंग में यही कर रहे होते हैं. दैट इज द रीजन दे पिवटल रोल होता है, दैट इज द रीजन दे आर अकाउंटेबल एज वेल. ठीक है, और दे कंट्रोल द व्हाट, दे कंट्रोल द मैनेजमेंट, right, they control the management. Yes, they set the financial goal and the strategic goal, they set the financial goal and the strategic aim of the company. Yes or no, right. So this is done by the board of directors, right. जब भी इनके बारे में आए तो यहाँ पे ये सब चीजें लिख सकते हैं. ठीक है, देन शेयर होल्डर्स, देन कम्स शेयर होल्डर्स. Yes or no, then are the shareholders. So they appoint the what, board of directors, right. They appoint the directors and the auditors, they appoint the directors and auditors. Yes, and what all role does they play? Then they hold the board accountable, they hold the board
accountable, right, for proper governance, for proper governance. Yes or no? Right? Okay. Then comes management. ओके, तो मैनेजमेंट की जब बात करें, इनका बेसिकली क्या काम होता है, डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है, ठीक है, मैनेजमेंट का जो काम होता है, दे हेल्प इन द डे टू डे फंक्शनिंग. यस, दे हेल्प इन द डे टू डे फंक्शनिंग, राइट. So they undertake the management of the company, right? They undertake the management of the company in lines of, they they undertake the management of the company in the lines of direction provided by the board, right? जो बोर्ड डायरेक्शन करी है, जो उन्होंने डायरेक्ट करा डिसीजन मेकिंग, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं. मैनेजमेंट इज द थिंग पार्ट वेयर the implementation of the decision making takes place, right? And the last but the most important one are what? Customers, clients. ठीक है, सी कंपनी जो है इन जनरली, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, जब भी कोई कंपनी, राइट, वो क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में अगर काम नहीं करती, अगर वो कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में, ठीक है, अगर काम नहीं करती, मतलब कि वो कस्टमर्स को फोकस ना करके सिर्फ अपने प्राइवेट गेन के बारे में सोचना शुरू कर देती है, ठीक है, कस्टमर्स की ज्यादा परवाह नहीं करती जब भी वो, तो उस टाइम पे क्या होता है, दैट कंपनी इज बाउंड टू फेल. व्हाई? बिकॉज वो वाला जो विजन होगा उनका, वो बहुत शॉर्ट टर्म विजन होगा. वो वाला विजन क्या होगा? शॉर्ट टर्म विजन होगा, ठीक है, बिकॉज कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे वो. जब कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, दैट कंपनी is doomed to fail. यस और नो? तो हमेशा जो है कंपनी को कस्टमर को सेंटर में रखते हुए, कस्टमर ओरिएंटेड होके ही सारी की सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सारी के सारे टास्क उनके परफॉर्म होने चाहिए. यस और नो? ठीक है, बात आई समझ में? राइट. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्लियर? देन नेक्स्ट कम्स द principles of good corporate governance. Important aspects again. Principles of good corporate governance. What are the principles that need to be followed to implement good corporate governance? So first is the most important, duty based ethics. Right? Duty based ethics मतलब means, right, means are more important than the ends. राइट, हमें जो जो कंपनी को जो अपनी ड्यूटी, अपने काम करने के तरीके पे ज्यादा ध्यान देना है, जो उन्हें काम करना है, ना कि सिर्फ एंड रिजल्ट, गोल की तरफ टारगेट नहीं करना. राइट, उनको अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एथिकली परफॉर्म करना है, उस पर फोकस करना है कि वो सही मैनर में हो. राइट, तो उसके बाद उनको एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना. क्यों? अगर वो ऐसा कर रहे होंगे, अगर वो सिर्फ एंड रिजल्ट को टारगेट करेंगे, तो वो अगेन वो विजन क्या है, वो एक शॉर्ट टर्म विजन रहेगा. ठीक है, वो एक शॉर्ट टर्म विजन रहेगा जिसका जो है लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा. एंड दैट द कंपनी माइट इवन फेल इन फ्यूचर. राइट, सो दे शुड फॉलो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, right, in which it contains the company should convey the roles and responsibilities, the roles and responsibilities the roles and the responsibilities of board of directors, managers, right, board of directors, managers, employee, etc. Yes, so this is it. Then और equity, ठीक है, equity,
कंपनी शुड को इक्विटी को फोकस करना चाहिए, ठीक है। द कंपनी शुड डेफिनेटली इक्विटी पे भी बहुत बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लाइक द कंपोजिशन, ठीक है, द कंपोजिशन शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव कंपोजिशन मतलब कि जो टॉप पे बैठे हैं, ठीक है, और जो लोअर स्टार्टअप में बैठे हैं, लोअर बिल्कुल जो टॉप की पोस्ट है और लोअर पोस्ट है, जो जूनियर्स और सीनियर्स की बात कर रहे हैं, राइट, उसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एज सच, ठीक है, उसमें ज्यादा गैप एज सच नहीं होना चाहिए, उनके सैलरी के अंदर भी, ठीक है, और भी दूसरी एस्पेक्ट्स के अंदर भी, क्लियर। सो इफेक्टिव कंपोजिशन, द साइज ऑफ द कंपनी, ठीक है, सबको इक्विटेबल, जो रेन्यूमरेशन की भी बात करें, रेन्यूमरेशन भी इक्विटेबल होना चाहिए रादर, ठीक है, उसकी तरफ फोकस करना है। देन डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स शुड बी फॉलोड, एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग, ethics should be followed in decision making, right? So values like, ठीक है, fairness, right, fairness, honesty, right, integrity, values like honesty, ठीक है, integrity, fairness, ठीक है, just, they need to be followed in the decision making, clear हुई बात, yes or no? Then और इसके साथ साथ द डिस्क्लोजर शुड बी ट्रांसपेरेंट, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करना है बेसिकली, द डिस्क्लोजर शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी डन इन द टाइमली बाउंड मैनर, राइट, जो भी उनकी पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, टाइम बाउंड रहनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट, दैट शुड बी डन। देन देयर शुड बी ट्रस्ट, राइट, अब यहाँ पर क्या है कि देयर शुड बी ट्रस्ट बट नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट, देयर शुड बी ट्रस्ट बट नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट, मतलब कि इंटरनली उनके, ठीक है, इंटरनली उनके वेरिफिकेशन के, इंटरनली उनके वेरिफिकेशन के मेथड्स होने चाहिए, ठीक है, इंटरनल वेरिफिकेशंस, ठीक है, इंटरनल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स या सेफगार्ड्स, और सेफगार्ड शुड बी इन प्रैक्टिस, should be in practice, yes, this is very important, right, there should be a sound system of risk, there should be a sound system, there should be a sound system of risk oversight, ठीक है, रिस्क अवर्स होना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना और एज सच, ठीक है, कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मतलब कि एंड गोल को फोकस करते हुए कि ज्यादा रिस्क ले लिया जाए तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, इन मेनी वेज, राइट। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यू टर्म है, दैट इज कंपैशनेट, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, तो यहाँ पर क्या बात करी गई है, ठीक है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म के अंदर कि कैपिटलिज्म के अंदर कुछ कंपैशनेट वैल्यूज, ठीक है, देयर शुड बी वैल्यूज लाइक कंपैशनेट, लाइक आपकी एम्पैथी, ठीक है, केयर, कंपैशन, दिस काइंड ऑफ वैल्यूज शुड कम इन द कैपिटलिस्टिक नेचर, कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा है बट उसके साथ साथ वहां पर नॉर्मली चीजें नहीं फॉलो होती, ये होनी चाहिए कि एम्पैथी वाली जो वैल्यू है, ठीक है, केयर, ठीक है, इस टाइप की चीजें आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए, और इसके साथ साथ लाइक जो रेन्यूमरेशन भी है, रेन्यूमरेशन की जो है, रेन्यूमरेशन के अंदर देयर शुड बी लेस वेरिएशन, देयर शुड बी लेस वेरिएशन, मतलब कि जो हेड पे टॉप पे जो बंदा बैठा है और जो नीचे जूनियर बिल्कुल लोअर मोस्ट पोजीशन पे भी जो बैठे हैं, इनकी सैलरीज में
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर लेवल तक ही होना चाहिए। यस और नो? ठीक है। और लाइक एक ना टर्म होती है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो लो पावर, राइट, वो लो पावर, और एक टर्म होती है हाई पावर। कंपनी की बात करें तो देयर इज अ एक टर्म होती है लो पावर कंपनी, और एक टर्म होती है हाई पावर कंपनी, राइट। तो लो पावर का मतलब क्या होता है कि जो हेड है, टॉप पे जो बैठे हैं, लेट्स से जो सीईओ, ठीक है, और जो नीचे जूनियर है, क्लर्क, ठीक है, इनमें जो है गैप है वो ज्यादा नहीं होता, गैप ज्यादा नहीं होता, मतलब दोनों टर्म्स में, रेन्यूमरेशन की टर्म्स में भी ज्यादा, सैलरी में ज्यादा फैक्ट डिफरेंस नहीं है, दूसरा रीचेबल भी है वो, ठीक है, ज्यादा रीचेबल भी है भाई साहब बीच में, कि जूनियर जो है ऊपर टॉप को रीच कर सकते हैं। और एक हाई पावर कंपनी, यहाँ पर क्या है कि जो हेड है और जो आपके जूनियर्स हैं, इसमें जो गैप है वो ज्यादा होता है, ठीक है, गैप ज्यादा होता है। तो हमेशा ये लो पावर कंपनी, इसको फॉलो करना है, दिस शुड बी फॉलोड। यस और नो? राइट। ओके, सो कंपैशनेट कैपिटलिज्म। देन एक और आपका इंपॉर्टेंट क्या है प्रिंसिपल, कि आपको इंक्लूसिवनेस को फॉलो करना है, राइट। आपको सबको इंक्लूड करते हुए चलना है, सबको इंक्लूड करते हुए चलना है। अभी हमने पहले देखा था कि फेयर होता है, फेयर होना चाहिए, राइट। इंक्लूड, यहाँ पर आपको बेसिकली क्या है, इंक्लूड मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पहली बात तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कास्ट, जेंडर, राइट, रिलीजन, इनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको लेके चलना है, इंक्लूसिव होना चाहिए। यस और नो? राइट। सारे एम्प्लॉयज को लेके चलना है, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए ही अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी followed in a corporate governance, right? Okay, so now the next dimension is, what is the need of corporate governance? What is the need of corporate governance, right? What is the need of corporate governance? So इसके अंदर, ठीक है, लाइक इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब भी फॉलो अगर कोई कंपनी करती है तो इट अट्रैक्ट्स व्हाट, इट फेवर्स द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, इट फेवर्स द इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मतलब इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, राइट, इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पता होगा इन्वेस्टर्स को भी भाई यहाँ पर एथिकल चीजें चलती हैं, तो बैलेंस वे में चलती हैं, तो प्रोसेस सही चलता है, बहुत तरीके से फॉलो होता है, तो इस कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा है, राइट, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो इन्वेस्टर्स को भी क्या करते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं, तो एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, राइट, जिसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है कंपनी को फॉलो करनी चाहिए, राइट। इट अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स, इट रिटेन्स द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, देन और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, यस, इट बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी, जिसकी वजह से ही इन्वेस्टर्स भी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, यस और नो, जिसकी वजह से क्या है, आपके इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, राइट। रिस्पेक्ट वाला फैक्टर आपका बढ़ता है, ठीक है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, पब्लिक इमेज आपकी अच्छी होती है, पब्लिक इमेज भी क्या होती है, पब्लिक इमेज भी आपकी बेटर होती है, यस और नो, राइट। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड इसलिए है बिकॉज टू फॉलो व्हाट, द वेल्थ, द वेल्थ शुड बी क्रिएटेड, वेल्थ क्रिएट हो रही है, क्रिएट द वेल्थ, नॉट जस्ट, द वेल्थ शुड बी क्रिएटेड, नॉट जस्ट लीगली, बट एथिकली, बट एथिकली, सिर्फ लीगली नहीं, ठीक है, एथिकल भी होना चाहिए। वाई, राइट, वाई, बिकॉज यहाँ पर हम गांधी जी की बात करेंगे, ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला हुआ है,
गांधी जी हैज सेड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, गांधी जी के अकॉर्डिंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन, इट इज अ सिन। गांधी जी के 7 सिंस में इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। सो विदाउट मोरालिटी कॉमर्स इट इज नॉट गोना सस्टेन फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। पहली चीज तो ये, दैट इज द रीजन एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो दीज आर द नीड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस शुड बी फॉलोड, यस। देन एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि जो डाउन ट्रोडन है, ठीक है, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो सर उनको भी साथ लेकर चलना है। सो सर्वोदय वाया अंत्योदय ये चल रहा है आजकल, सर्वोदय वाया अंत्योदय। मतलब हाउ कैन यू डू दैट, आप वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर्स, ठीक है। गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी, राइट, गुड सैलरी वर्किंग, ठीक है। इस टाइप से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत सही चलेंगी आपकी, ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड, ठीक है, इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यस और नो, ठीक है। ओके ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। छोटा सा एस्पेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पेंडिंग है, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, जहां वेयर आई विल बी टेलिंग यू द वे फॉरवर्ड, राइट। कुछ नए अच्छे इनिशिएटिव आपको बताऊंगा, कुछ अच्छी टर्म्स आपको वहां पे बताऊंगा, द वे फॉरवर्ड, जो कि आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, राइट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।